غریب کی ہوں گی مشکلات آسان، وزیر اعظم نے کر دیا بڑا اعلان۔ گھی، دال، چینی، چاول اور آٹا 10 سے 25% سستا کیا جائے گا۔ 18 ارب کا خصوصی پیکج لانے کا فیصلہ۔ اہم اجلاس میں پرچون کی 50,000 دکانوں پر اشیاء کی فراہمی پر غور۔ 50,000 رجسٹرڈ تندوروں پر بھی سستا آٹا فراہم کیا جائے گا۔ کل کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔ حالیہ آٹا بحران میں جہانگیر ترین کا کوئی کردار نہیں، وزیر اعظم نے کھلاڑی کو کلین چٹ دے دی۔ آٹا بحران کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن کا بھی اعلان۔ شبر زیدی کی کرسی خطرے میں، کپتان کی حکومتی ترجمانوں کو چیئرمین FBR کے لیے موضوع شخص لانے کی ہدایت۔ رضا باکر اور حفیظ شیخ کو دیا گرین سگنل، واضح کر دیا مشیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک تبدیل نہیں ہوں گے۔ ذخیرہ اندوز نہیں بچیں گے، پنجاب بھر میں بڑا کریک ڈاؤن۔ فیصل آباد، ننکانہ صاحب، رحیم یار خان، پسرور اور گگو منڈی سمیت مختلف شہروں میں ایکشن۔ ذخیرہ کی گئی چینی کی ہزاروں بوریاں برآمد۔ کارروائی کے دوران چاول کی ہزاروں بوریاں بھی تحویل میں لے لی گئیں۔ ملک کی چینی بیرون ملک نہیں بیچی جائے گی، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چینی کی برآمد پر پابندی عائد کرنے کی منظوری دے دی۔ مشیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں قرار دیا گیا، ملک میں چینی کے مناسب ذخائر ہیں۔ 45 کروڑ ڈالر کی تیسری قسط کے لیے IMF سے پالیسی سطح پر مذاکرات۔ نیپرا اور اوگرا کو آزادانہ کام کرنے کی شرط کا جائزہ۔ اہداف حاصل کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور۔ پاور سیکٹر کے لیے نئے سلیب متعارف کروائے جانے کا امکان۔ معاشی صورتحال پر سرمایہ کار گھبراہٹ کا شکار، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا تسلسل برقرار۔ 100 انڈیکس میں 846 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 39,296 پر آ گیا۔ حکومتی کوششیں کامیاب، چودھری برادران کو رام کر لیا۔ قافلی کے وزراء کو مکمل خود مختاری دی جائے گی، پرانے وعدوں پر بھی عمل ہوگا۔ پرویز الہی کہتے ہیں مسائل حل ہو گئے، عمران خان کی قیادت اور نیت پر کوئی شک نہیں۔ معاون خصوصی فردوسہ شکاوان کے مولانا فضل الرحمان پر وار، کہا سازش کرنے کے بجائے 12ویں کھلاڑی ڈنڈ نکال کر وزن ہلکا کرے۔ منتخب حکومت گرانا غداری کے زمرے میں آتا ہے، عوام سیاسی پنجہ آزمائی سے تنگ آ گئے۔ مولانا کو اپنا ترانہ تبدیل کرنے کا مشورہ، کہا اب ٹائٹل ہونا چاہیے، مولانا جا رہا ہے۔ انتشار پھیلانے والا ٹولہ 2023 تک اپنی باری کا انتظار کرے۔ کس کے پاس ہے کتنا دھن؟ سیاسی جماعتوں کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ تحریک انصاف کے اثاثے 22 کروڑ 53 لاکھ ہیں۔ ممنوعہ ذرائع سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوئی، چیئرمین عمران خان کا بیان حلفی۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پاس 16 کروڑ روپے کا بینک بیلنس۔ نون لیگ کے اثاثوں کی مالیت 8 کروڑ 17 لاکھ روپے ہے۔ JB اوپل کیس میں نیب راولپنڈی نے بلاول بھٹو کو طلب کر لیا، 13 فروری کو پیش ہونے کی ہدایت، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی فہرست بھی طلب۔ اسحاق ڈار کا لاہور والا گھر پناہ گاہ میں تبدیل، اہلیہ تبسم ڈار عدالت پہنچ گئیں، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست، پنجاب حکومت کا اقدام خلاف قانون قرار دے دیا، عدالت نے حکم امتناع جاری کر دیا، صوبائی حکومت سے 10 روز میں جواب طلب کر لیا گیا۔ بھارت باز نہ آیا، کنٹرول لائن پر پھر دہشت گردی، ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے جنگروٹ اور نکیال سیکٹر پر بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا، بھارتی گولہ باری سے 10 پاکستانی شہری زخمی، پاک فوج کا کرارا جواب، بھارتی فوجی مار گرایا، میجر سمیت 3 بھارتی فوجی بھی زخمی، پاکستان کا بھی شدید احتجاج، بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ قدم تحریک طالبان کا ترجمان احسان اللہ احسان فرار کیسے ہو گیا؟ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے نوٹس لے لیا، چیئرمین رحمان ملک کی زیر صدارت اجلاس، وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ H1N1 فلو وائرس کے وار، 1 ماہ میں اموات 5 ہو گئیں، رواں سال اب تک 129 کیس رپورٹ ہو چکے، متاثرین میں 71 خواتین بھی شامل۔
लाहौर का काशाना, हर गुजरते दिन के साथ नया अफसाना। वेलफेयर होम की रिहायशी यतीम लड़की का पुराना बयान सामने आ गया। महकमे सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर लाहौर डिवीजन मुबशिर जावेद पर संगीन इल्जामात। लड़की का कहना है मुबशिर जावेद के काशाना में मुकीम लड़कियों से ताल्लुकात हैं, वो लड़कियों को रकम भी देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर आजम इमरान खान के बड़े इक़दाम से। हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए 18 अरब का खुसूसी पैकेज लाने का फैसला कर लिया है। घी, दाल, चीनी, चावल और आटा 10 से 25% सस्ता किया जाएगा। पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए दिया जाएगा। 50,000 रजिस्टर्ड तंदूरों पर भी सस्ता आटा फराहम किया जाएगा, जबकि परचून की 50,000 दुकानों पर अशिया की फराहमी पर गौर किया गया। गरीब आवाम की मुश्किलात अब होंगी आसान। वजीर आजम इमरान खान ने कर दिया बड़ा ऐलान। इस्लामाबाद में पार्टी तर्जुमानों की अहम बैठक बुलाई। महंगाई की सूरत हाल और गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने पर गौर किया गया। फैसला हुआ घी, दाल, चीनी, चावल और आटा 10 से 25% सस्ता किया जाएगा, जिसके लिए 18 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज लाया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स को फरवरी से जून तक हर माह 2 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना मंगल को बैठक में 18 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी देगी। ये पैकेज जून तक अवाम की मुश्किलात को कम करेगा। जुलाई में अवाम के लिए नए पैकेज का ऐलान होगा। वजीर आजम इमरान खान ने जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दे दी। आला सतह इजलास में कहा, हालिया आटा बहरान में जहांगीर तरीन का कोई किरदार नहीं था, लेकिन इस बहरान के पीछे जो कोई भी था उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करूंगा। साथ ही वजीर आजम ने चेयरमैन FBR शब्बर जैदी के जाने की भी तस्दीक कर दी और कहा कि वो बीमार हैं, उनकी जगह नया बंदा ला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन खबरों की भी तरदीद की कि मुशीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक को हटाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि हफीज शेख और रजा बाकर को उहदों से नहीं हटाया जा रहा। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमत इन एक्शन। पंजाब भर में ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में ज़ख़ीरा की गई करोड़ रुपए मालियत की चीनी की हजारों बोरियां बरामद कर ली गईं, जबकि पसरूर से चावल की 6,000 बोरियां भी बरामद की गई हैं। आपको बता रहे हैं कि ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमत इन एक्शन है। पंजाब भर में ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन सामने आया है। मुख्तलिफ शहरों में ज़ख़ीरा की गई करोड़ों रुपए मालियत की चीनी की हजारों बोरियां बरामद कर ली गई हैं, जबकि पसरूर से चावल की 6,000 बोरियां बरामद हुई हैं। महंगाई में कमी के लिए रिलीफ पैकेज पर अवाम ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जो वादे करते हैं वो तो पूरा नहीं करता। अभी तक जो कुछ इसने किया है उससे तो अंदाजा ये हो रहा है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये मेरे ख्याल से खुश आइन तो ज़रूर है, लेकिन इससे महंगाई का मसला मुकम्मल तौर पे शायद हल ना हो सके। इमरान खान साहब की बातों से तो यही लगता है, उनके जज्बात से, कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सच्चे हैं और वादा पूरा करेंगे। जो चीज़ महंगी हो चुकी हुई है उसमें कोई भी राहत नहीं मिलती। आम आवाम से कोई फायदा नहीं होएगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ। हुकूमत को चाहिए कि गंदम, आटा, चावल पर सब्सिडी दे लोगों को, ताकि सारे अवाम इससे मुस्तफीद हो जाएं। जो रेट वो दे रहे हैं हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पे, उसमें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं 3-4 चीज़ें जिस पे वो सब रेट कम है, बाकी बाजार के बराबर है। माहिर माली उमूर खुर्रम शहजाद कहते हैं कि हुकूमत का बजरिया यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ फराहम करना बड़ा कदम नहीं, लेकिन सिम दुरुस्त है। अगर हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने का फायदा आवाम तक पहुँचाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा और इससे आवाम को ज्यादा रिलीफ मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू जो बात की जा रही है रिलीफ देने की, वो एक बुरा स्टेप नहीं है और ठीक डायरेक्शन है। स्टेप बुरा नहीं है, बट ऑफ कोर्स वो सब्सिडी वाली चीज़ है कि सब्सिडी उस पर हमें देनी पड़ेगी। बट फॉर द टाइम बिंग अगर रिलीफ मिलता है और अच्छी बात ये कि ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ गई हैं, तकरीबन 20% तक ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं पिछले कोई 4-5 वीक्स में, तो वहाँ से भी एक रिलीफ मिल सकता है कि अगर गवर्नमेंट जो है पेट्रोलियम प्राइसेस, प्रोडक्ट प्राइसेस को पास ऑन करे, पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी कमी हो अगले आने वाले महीनों में। मुल्क की माशी हालत अच्छी नहीं है। वजीर खारजा ने एतराफ कर लिया, पहले कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, अब दरामद का सोच रहे हैं। बिजली महंगी होगी तो महंगाई होगी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से ही बेहतरी आ सकती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी बतदरीज गिर रही है और आपने जिक्र किया कि सबसे बड़ी सनत आपकी टेक्सटाइल्स की है और कैफियत ये है कि पाकिस्तान जो लिंट एक्सपोर्ट किया करता था आज उसको रुई दरामद करनी पड़ रही है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। जब आप
इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 6 माह या 1 साल को मद्देनजर रख के नहीं करते, और जब आप पुल आउट करते हैं वो भी आप 1 साल के अपने लॉसेस को सामने रखकर फैसला नहीं करते। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज ने भी करारा जवाब दिया। एक भारतीय फौजी मार गिराया, मेजर समेत 3 भारतीय फौजी जख्मी हो गए। पर भारत की फिर दहशतगर्दी, जंदरोट और नकियाल सेक्टर पर मार्टर गोली बरसाए। जिला कोटली में जबार संधड़ा, संभली गली और तबसई की 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 10 शहरी शदीद जख्मी हो गए। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। उन तमाम भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तानी इलाकों में फायरिंग करके शहरियों को निशाना बनाया जा रहा था। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से एक भारतीय फौजी हलाक जबकि एक भारतीय मेजर समेत 3 भारतीय फौजी जख्मी हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों पर भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया और एहतजाजी मरासला थमाया गया। अब बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में इनिंग्स और 44 रन से शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। मेहमान टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 168 रन पर ही ढेर हो गई। फास्ट बॉलर नसीम शाह मैच के हीरो करार पाए। सीरीज का दूसरा टेस्ट अप्रैल में कराची। मुस्लिम लीग काफ हुई राम, हुकूमत का बन गया काम। लाहौर में लगी अहम बैठक में सारे गिले शिकवे दूर हो गए। हुकूमत ने मुस्लिम लीग काफ के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने लीगी उज़रा की बाख्तियार हैसियत को तस्लीम कर लिया। काबिल एतराज़ अफसर की तकर्रुरी पर PTI अपने तहफ़्फ़ुज़ात का हक रखेगी। मुस्लिम लीग काफ अपने अज़ला में अवामी मसाइल के हल के लिए बाख्तियार होगी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक बोले, आज तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। ना ये जा रहे, ना MQM जा रहा है, ना बाप पार्टी जा रही, कोई पार्टी इत्तेहादी भी हमें छोड़ के नहीं जा रहे हैं। इश्यूज आते रहते हैं, घर में भी आते रहते हैं, वो हमने खुश असलूबी से तय कर लिए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हो गए हैं। बिल्कुल अब क्लैरिटी आई है और इंशाल्लाह जो इश्यूज आए थे वो बैठ के सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और सेटल हुई हैं। बैठक में ये भी तय पाया कि काफ लीगी अरकान असम्बली को तरक्याती फंड जल्द जारी किए जाएंगे। फॉलो अप मीटिंग आइंदा 2 रोज में इस्लामाबाद में होगी। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के माली साल 2018 और 19 के असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। हुक्मरान जमात PTI 22 करोड़ 53 लाख मालियत के असासों के साथ अमीर तरीन जमात